My dear students, welcome to Mathological. In this session, we are going to discuss the concept of successive division and successive remainders. We'll be understanding what the concept is, and once the session is over, in next 15 minutes, you will be understanding the concept so easily that such questions will be a cakewalk for you. So what is a successive division? Let us say the question is saying that there is a number 243 and it is successively divided by 2, 3 and 5. So first of all, we must understand कि interpretation क्या है इस बात का. What is successive division? First of all, we are dividing 243 by 2. So 243, when we are dividing this by 2, टू आएगा, ठीक है. देन 2 2 is 4. So the quotient comes out to be 121. When we are dividing 243 by 2, remainder is 1 and quotient comes out to be 121. अभी जो रिमाइंडर आया है ये तो हमारा रिमाइंडर हो गया और quotient will be dividend for next division. So now we will be dividing 121 by 3. So पहले तुमने 2 से डिवाइड किया 243 को, जो क्वोशंट आया उस क्वोशंट को हम 3 से डिवाइड करेंगे. दैट इज व्हाट सक्सेसिव डिवीजन इज ऑल अबाउट. तो 3 से डिवाइड करेंगे 121 को. 3 4 जा 12. अब तो जाएगा नहीं. सो रिमाइंडर विल बी 1 अगेन एंड 40 इज द क्वोशंट. नाउ दिस क्वोशंट फॉर द सेकेंड टाइम विल बी डिवाइडेड फर्दर बाय 5. So 5 8s are 40, remainder will be 0. So when we are dividing successively by 2, 3 and 5 to 43 को, तो remainders हमारे क्या आ रहे हैं? Remainders are coming out to be 1, 1 and 0. क्या ये पार्ट क्लियर है? Remainders are coming out to be 1, 1 and 0. And we already know the remainder theorem that dividend, this is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर. ओके, सो प्रॉपर तरीके से लिखने का मेथड सीख लेते हैं इसके बाद में क्वेश्चंस को, क्योंकि जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगा तो मैं रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहले प्रॉपर लिखना तो सीख लें इसको. सो दिस इज 243. And then we are dividing it first by 2, then 3 and 5. So when we are dividing it by 2, 121 times जाएगा, quotient will be 121 and 1 will be remainder. Basically 243 is 2 into 121 plus remainder, that is 1. Isn't it so? ठीक है. अब next step पे this 121 becomes the dividend and we are dividing by 3. 3 से जाएगा 40 times and remainder will again be plus 1. So 3 into 40 plus 1, that is our dividend by the same logic. Next step पे 40 will be our dividend और divide कर रहे हैं 5 से, 8 times जाएगा, remainder will be 0. 5 into 8 plus 0. That is what the concept is and that is the proper method to write. क्या ये बात समझ में आती है? अब एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली. So a number is successively divided by 5, 7 and 4 and the remainders are 2, 3 and 5. This is the information that is given. A number is successively divided by 5, 7 and 4 and remainders are 2, 3 and 5. So we have to identify what could be the number. अब इस बार इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं गिवन है. सबसे पहला काम, एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट एनी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर. सो डिवाइजर्स आर 5, 7 and 4 and रिमाइंडर इज 2, 3 and 5. So since now we have to start फ्रॉम द लास्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में हम कहां से स्टार्ट करें, वी हैव नो आइडिया एब्सोल्युटली.
तो हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे ऐसे केसेस में, बट लास्ट से भी स्टार्ट करना है तो क्वोशिएंट क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द क्वोशिएंट। तो लेट अस अज्यूम कि क्वोशिएंट इज इक्वल टू के, क्वोशिएंट इज के, एंड इफ क्वोशिएंट इज के तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर दैट इज आवर नंबर, ठीक है। तो 4 इंटू के प्लस 5 दैट विल बी द नंबर फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारा आ जाएगा क्वोशिएंट 4k प्लस 5, और 4k प्लस 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड देन 3 इज एडेड, तो 4k प्लस 5 इंटू 7 विल बी 28k प्लस 35, तो 28k प्लस 35 प्लस 3 38 हो गया, एंड नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 2 इज एडेड, तो 5 इंटू 28k इज 140k प्लस 5 इंटू 38 is 190 plus 2 192, so our number comes out to be 140k plus 192, number n comes out to be 140k plus 192। क्या ये पार्ट क्लियर है? और यहां पे we can put any value of k, accordingly we will be getting a solution, with any value of k we will be getting a solution। so if we put k is equal to 0, n will be equal to 192, okay। if you put k is equal to 1, n will be equal to 332, the second highest value, so the second value। तो smallest value हमें मिलेगा, minimum value of n will be at k is equal to 0, और next values will be at the gap of 140। now question could be कि 140 is our number, ठीक है, 140 का के गैप पे हमें नंबर्स मिल रहे हैं, और 140 क्या है, दिस इज 5 इंटू 7 इंटू 4। तो क्वेश्चन कुड बी कि व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 से तो डिवाइड किया ही है, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 तो रिमाइंडर क्या होगा, या व्हेन द ऑर्डर इज रिवर्स्ड तो फिर रिमाइंडर्स क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस को स्ट्रेट अवे देखते हैं, बट दिस इज आवर बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर सच क्वेश्चंस। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है। और इन एनी सच केस विल बी गेटिंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बट क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा। या तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, या तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर व्हिच आर लेस देन 1000, 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है? क्योंकि अगर इतना प्रोसेस समझ गए तो फिर क्वेश्चन ईजी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 840 is successively divided by 9, 5 and 7। 840 is successively divided by 9, 5 and 7। So we are starting with 840, divisors on the left hand side, remainder on the right hand side, and divisor into quotient plus remainder. That is what we have to do. So numbers are, divisors are 9, 5 and 7. When we divide 840 by 9, quotient क्या आएगा, 9 9s are 81, 93 टाइम्स जाएगा और 3 will be remainder। When 93 को डिवाइड करोगे अब 5 से, 18 टाइम्स जाएगा, 18 5s are 90 और बच जाएगा हमारा 3 अगेन। अब 18 को डिवाइड करोगे 7 से, 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारा 4। So successive remainders are 3, 3 and 4. That is our answer. This is our answer. 3, 3 and 4 are the successive remainders. Clear? Next question. A number when successively divided by 4 and 5 leaves the remainder 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4, respective remainders क्या होंगे? यानी कि पहले हम 4 and 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर्स आ रहे हैं 1 and 4। जब 5 and 4 से यानी रिवर्स डिवीजन करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर्स विल बी डिफरेंट एंड नॉट द सेम। बट एक चीज जो समझ में आनी चाहिए कि ऑप्शन ए आंसर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि 1 और 4 आ रहे हैं तो उल्टा कर दोगे ऑर्डर तो 4 and 1 आ जाएगा। बिल्कुल ये लॉजिक फिट नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस में। सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सो वी आर डिवाइडिंग बाई 4 and 5, दीज आर डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर इज 1 and 4। ओके, so if let us say our quotient at last step is k, तो नंबर बन जाएगा उससे प्रीवियस स्टेप में 5k plus 4। now 5k plus 4 has to be multiplied by 4 which becomes 20k plus 16 plus 1, 20k plus 17। okay, and we have to divide successively by 5 and 4। अब 5 and 4 से सक्सेसफुली डिवाइड करना है 20k plus 17 को।
तो इफ यू आर डिवाइडिंग फर्स्ट बाई 5 एंड देन बाई 4, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4k प्लस 3 और रिमाइंडर बच जाएगा 2. देन विल डिवाइडिंग बाई 4 जाएगा k प्लस 0 यानी k टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर विल बी 3. सो आंसर विल बी 2 and 3. दीज आर द रिमाइंडर्स, ऑप्शन सी. क्या ये बात क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस पुट अ वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0 इन दिस क्वेश्चन. k इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और फिर से अब डिवाइड करते हैं सक्सेसफुली बाई 5 and 4. देखते हैं आंसर्स क्या आएंगे. तो इफ नंबर इज 17, बिकॉज k इज इक्वल टू 0 पे नंबर हो जाएगा 17, 20 के तो 0 हो गया. डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर, डिवाइजर्स आर 5 and 4. So if you are dividing 17 by 5, quotient will be 3 and remainder will be 2. Now if you are dividing 3 by 4, quotient तो 0 आएगा और रिमाइंडर्स आएंगे थ्रू. तो अगेन रिमाइंडर्स आर 2 and 3. बेसिकली द पॉइंट इज कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी 20k प्लस 17. जनरल सॉल्यूशन इज 20k प्लस 70. बट इन मोस्ट केसेस हमें k से कोई मतलब नहीं है, हमें k से कोई मतलब नहीं है. तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, विल ऑलवेज अज्यूम k इज इक्वल टू 0 टू स्टार्ट विद. We'll assume k is equal to 0 to start with. ठीक है. सो बेसिकली क्या करेंगे, हमें 4 से डिवाइड कर रहे हो और फिर 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर्स आ रहे हैं 1 and 4. ओके फाइन. तो 4 को लिखा, 5 को लिखा, डिवाइजर्स को लिखा, बेसिकली रिमाइंडर्स को लिखा राइट हैंड साइड पे 1 and 4. नाउ वील एज्यूम दैट द फर्स्ट स्टेप पे कोशेंट इज 0. कोशेंट इज 0 एट द फर्स्ट स्टेप. यू कैन एज्यूम एनी वैल्यू, तुम 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, जो वैल्यू लेना चाहो लो. आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन जनरल. ठीक है, बट विल एज्यूम 0 बिकॉज सबसे छोटा नंबर मिलेगा उससे. तो 0 into 5 प्लस 4 कम्स आउट विद 4. नाउ नेक्स्ट स्टेप पे 4 into 4 प्लस 1 दैट इज 17. सो स्मॉलेस्ट सच नंबर इज 17. अब बाकी का प्रोसेस तो समझ ही रहे हो, क्लियर है. तो फर्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा 17. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर विल बी 17 में जब ऐड करोगे दीज डिवाइजर्स का प्रोडक्ट, नहीं 4 into 5. तो नेक्स्ट नंबर विल बी, फर्स्ट नंबर 17 है, नेक्स्ट नंबर आएगा 17 प्लस 4 into 5 तो 37. देन नेक्स्ट नंबर विल बी 17 प्लस 4 into 5 क्या है, 20 into 2. पहले केस में 20 into 1 था, 57. देन मिलेगा 77 विच इज 17 प्लस 20 into 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दीज आर ऑल द पॉसिबल नंबर्स विच विल बी सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस. अब किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे सक्सेसफुली बाई 5 and 4 जो कि डिवाइजर्स ऑलरेडी हमारे थे, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा. ठीक है, फर्क कब पड़ेगा, बिकॉज जनरल सॉल्यूशन हमारा 20k प्लस 17. सो एज लॉन्ग एज वी आर डिवाइडिंग बाई 20, ठीक है, डिवाइडिंग बाई 20 और फैक्टर ऑफ 20, ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ 20 बेसिकली 4 and 5 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, या फिर 2 और, तो फिर तुम्हारा आंसर नहीं बदलेगा 4 और 5 से तुम डिवाइड कर रहे हो तो. बट अगर इंस्टेड हम इसके बजाय कोई दूसरा नंबर ले लेंगे, लेट अस से वी आर एज्यूमिंग कि नंबर 7 है हमारा, वी आर डिवाइडिंग बाई 7, तो डिवाइजर हमारा 7 है, तो आंसर चेंज हो जाएगा. देन आंसर विल मैटर कि हमारा नंबर 17 है या फिर 37 है या 57 है या 77 है. ओके, तो 20 से डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं, 4 and 5 से डिवाइड कर रहे हो, ऑर्डर चेंज कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमारा सेम आएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, वेदर वी आर टेकिंग 17 और 37 और 57 और 77, सारे केस में हमारा सॉल्यूशन सेम आएगा. बट इफ वी आर डिवाइडिंग बाय सम अदर डिवाइजर, फॉर एग्जांपल 7, तो फिर हमारा आंसर डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर 17 है, इफ आवर नंबर इज 17, इन दैट केस रिमाइंडर विल बी 17 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी 3. 37 है, रिमाइंडर विल बी 2. 57 है, रिमाइंडर विल बी 1 एंड सो ऑन. तो अगर कभी भी क्वेश्चन में डिवाइजर जो हमें दिया है दैट इज नॉट वन ऑफ द गिवन डिवाइजर वैल्यूज जिनसे कि हम डिवाइड कर रहे हैं सक्सेसिव डिवीजन में, इन दैट केस द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है, कि डिवाइजर अगर फैक्टर नहीं है उस नंबर का जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दैट केस द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. बाकी केसेस में भी चेक जरूर करना है कि क्या हमारा डिवाइजर से डिवाइड करने पे आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. क्लियर है, क्या ये बात समझ में आती है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया. Next one, when a number is successfully divided by 3, 4 and 7, remainder is obtained at 2, 3 and 5. So what will be the remainder when 84 divides the same number? Now 3 into 4 into 7 is 84. तो 84 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली हर एक केस में हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. हम k की वैल्यू कुछ भी ले लें अपनी, ठीक है, और डेफिनेटली एक ही आंसर आएगा. तो कैन नॉट डिटरमाइंड अगर ऑप्शन होता भी यहाँ पे तो भी आंसर नहीं होता, बिकॉज 84 क्या है, 84 is 3 into 4 into 7 और 3 4 7 से ही तो हम डिवाइड कर रहे हैं.
Okay, so divisors are 3, 4 and 7. Remainders are 2, 3 and 5. लास्ट स्टेप पे एज्यूम करते हैं कोशेंट इक्वल टू 0. तो 7 इंटू 0 प्लस 5 इज 5. 5 इंटू 4 20 प्लस 3 23 और 23 इंटू 3 प्लस 2 71. सो अवर नंबर कम्स आउट टू बी 71. जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशन विल बी 3 इंटू 4 इंटू 7 84k प्लस 71. एंड इफ यू आर डिवाइडिंग दिस नंबर बाई 71 तो रिमाइंडर क्या, सॉरी 71 से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, 84 से डिवाइड कर रहे हैं. और अगर 84 से डिवाइड करें तो 84 के तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर विल बी 71 ओनली. रिमाइंडर आएगा हमारा 71 ओनली. ओके, आंसर विल बी 71. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A number when successively divided by 3, 5 and 8 leaves the remainder 1, 4 and 7 respectively. To find the respective remainders when the order of the divisors is reversed. तो पहले हम डिवाइड करें 3, 5 and 8 से और बाद में हम डिवाइड करेंगे 8, 5 and 3 से आंसर निकालने के लिए. बट पहले नंबर तो पता लगा लें, ठीक है. और सिंस ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स रिवर्स हो रहा है बट डिवाइजर्स तो वही रहने वाले हैं, तो आंसर विल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल द केसेस. 3, 5, 8 these are the divisors. 1, 4, 7 these are the remainders. ये लाइंस और ये जो इतना कुछ हम लिख रहे हैं ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है. अदरवाइज तुमको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत है, तुम बस 3, 5, 8 लिखोगे, 1, 4, 7 लिखोगे और वैल्यूज लिख लोगे. सो लास्ट वैल्यू 0. 0 इंटू 8 प्लस 7 कम्स आउट टू बी 7. 7 इंटू 5 35 प्लस 4 39. 39 इंटू 3 117 प्लस 1 118. So smallest such number is 118. Now we can divide 118 by numbers in the reverse order. तो डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे? 8, 5 and 3. ओके, सो 8 से डिवाइड करोगे 118 को तो जाएगा 14 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा 4, 6 बचेगा रिमाइंडर 112 एंड रिमाइंडर बचेगा 6. अब 14 को डिवाइड करोगे 5 से 2 टाइम्स जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा. अब 2 को डिवाइड करोगे 3 से, क्वोशिएंट विल बी 0 और रिमाइंडर विल बी 2. तो 6, 4 and 2 इज द आंसर. 6, 4 and 2 इज द आंसर, ऑप्शन डी. ओके, अपने एंड पे तुम एक बार लास्ट में क्वेश्चन को 0 की बजाय 1 लेके सॉल्व कर लेना, आंसर निकालोगे डेफिनेटली. यही सेम पैटर्न आएगा तुम्हारा. ओके, बट फिर भी एक बार मेरी बात को मत मानना, अपने एंड पे सॉल्व करके चेकआउट करना कि सेम आता है कि नहीं आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लार्जेस्ट 3 digit नंबर व्हिच व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 7, 4 and 6 गिव्स द रिमाइंडर्स 3, 1 and 4. तो 7, 4 और 6 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर्स आ रहे हैं हमारे 3, 1 and 4. तो व्हाट विल बी द लार्जेस्ट 3 digit नंबर? तो पहले हम k इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फिर जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे और अकॉर्डिंगली 3 digit नंबर निकाल लेंगे. तो वी आर डिवाइडिंग सक्सेसफुली बाय 7, 4 and 6 and the remainders are 3, 1 and 4. तो क्वेश्चन को 0 एज्यूम कर लेते हैं. 0 इंटू 6 प्लस 4 कम्स आउट टू बी 4. 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17. 17 इंटू 7 इज 119 प्लस 3 122. सो 120 इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर. और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? 7 इंटू 4 इंटू 6, 7 इंटू 4 28 इंटू 6 दैट इज 168. तो 168k प्लस 122. दिस इज अवर नंबर. ओके, और वी नीड टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट 3 digit नंबर. सो इफ यू मल्टीप्लाई k की जगह अगर हम 5 ले लें तो 168 इंटू 5 बिकम्स 840 एंड 840 प्लस 122 कम्स आउट टू बी 962. अब इसके बाद k इज इक्वल टू 6 लोगे तो डेफिनेटली हम 1000 के ऊपर पहुंच जाएंगे. सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 962. क्या है पार्ट क्लियर है? ओके, answer will be 962. Next question. N is a number which is less than 1000 and also a multiple of 5 and leaves remainders 2 and 3 when successively divided by 7 and 8. How many values of n are possible? N is a number which is less than 1000. एक एडिशनल कंडीशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है that n is also a multiple of 5.
बाकी सब तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली हो जाएगा। सो n को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से एंड 8 से, रिमाइंडर्स आर 2 and 3. सो डिवाइजर्स आर 7 and 8 and the remainders are 2 and 3. So first of all जनरल सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन को 0 लेते हैं. 8 into 0 plus 3 comes out to be 3. 3 into 7 21 plus 2 23. 23 is the smallest such value. और जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 7 into 8 is 56. जनरल सॉल्यूशन will be 56k plus 23. And this also has to be a multiple of 5. 5 का मल्टीपल भी होना है, यानी कि 56k plus 23 when divided by 5 remainder is 0. Remainder is 0 and number is also less than 1000. तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 56k plus 23 can be written as 55k plus k plus 20 plus 3. अब 55k तो हमारा मल्टीपल ऑफ 5 है, 20 is also a multiple of 5. So the only thing that we need to check is k and 3. So k plus 3 divided by 5 should leave remainder equal to 0. k plus 3 should be a multiple of 5. और अगर k plus 3 को 5 का मल्टीपल होना है तो what values can k take? k can be equal to 2. 2 हो सकता है, और it can be equal to 2 plus 5 7 और 12 और 17 और 22 और 27 and so on. बट हमारी एडिशनल कंडीशन क्या है कि n is a number that is less than 1000. Okay, so these are all the values of k. बट हमें देखना है इनमें से कौन सी वैल्यूज के लिए n is लेस देन 1000 एज वेल. तो 56k plus 23 this is less than 1000. So 56k is less than 977. 977. तो देखो 2 तो सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, 7 भी है सेटिस्फाई कर रहा है, 12 भी करेगा, 12 भी करेगा. 17 को चेक कर लेते हैं. 56 into 17 क्या आएगा? 17 6 are 102, 10 कैरी हो गया. 85 plus 10 952. तो यस 952 इज लेस देन 977. तो 17 भी सेटिस्फाई करेगा, बट इसके बाद की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी. सो ओनली 4 सॉल्यूशंस आर देयर, 4 वैल्यूज आर पॉसिबल व्हिच आर सेटिस्फाइंग ऑल द गिवन कंडीशंस. एग्जैक्टली 4 वैल्यूज आर देयर. और वो वैल्यूज क्या होंगी? वो वैल्यूज निकालनी है तो k इक्वल टू 7 12 17 निकाल के आंसर आ जाएगा. इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 3 5 7 and 9 सक्सेसिवली लीविंग रिमाइंडर्स 1 2 3 4 and 5. सो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7? अगेन क्योंकि हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं विच इज ऑलरेडी वन ऑफ द डिवाइजर्स, तो सॉल्यूशन विल रिमेन सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k. हम k इक्वल टू 0 मानेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा जो k इक्वल टू 1 मानने पे आएगा, जो k इक्वल टू 2 मानने पे आएगा. यानी कि डेफिनेटली यहां पे आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, आंसर विल बी आइडेंटिकल फॉर ऑल केसेस. ओके, बट जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन पूछता 12 तो उस केस में आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ के डिफरेंट आंसर आता. अनलेस क्वेश्चन मेंशन करता कि स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है तो फिर आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होता. जस्ट इन केस इफ क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट स्मॉलेस्ट नंबर, तब तो डेफिनेट आंसर आता, और जो आंसर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए था बस वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. ओके, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उस पर. बहरहाल फॉर दिस क्वेश्चन बस स्टेप बढ़ा दिया और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में. तो 2 3 5 7 9 आर और डिवाइजर्स. 2 3 5 7 9 these are the divisor values and the remainders are 1 2 3 4 and 5. One, two, three, four, and 5. So if we assume 0 as the quotient at the last step, so 9 into 0 plus 5 comes out to be 5. 5 into 7, 5 into 7, 35 plus 4, 39. 39 into 5 is 195 plus 3, 198. 198 into 3, that is 570 plus 24, 594 plus 2, 596. And 596 into 2, what is 1192 plus 1, 1193. That is the smallest number possible. This is the smallest number. Okay. So 1193 is the smallest such number.
रिमाइंडर पूछ रहा है, जब हम 7 से डिवाइड करें तो 1193 डिवाइड बाई 7, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? Now 7 is the factor of 1001, तो थ्री डिजिट्स में हमने ब्रेक कर दिया, and then alternate +1 -1, so basically 192 डिवाइड बाई 7, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 7 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा, 52 बचा, तो 3 विल बी द रिमाइंडर अल्टीमेटली। आंसर आ जाएगा हमारा 3 विल बी द रिमाइंडर। ओके, इज दैट क्लियर? इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, और कहीं पे कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। और अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और कमेंट्स अबाउट दिस वीडियो, ठीक है, कुछ भी कहीं पे कोई डाउट रहता है या तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट अबाउट दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।